from class 10th. Class 10th, we are doing our chapter triangles. In our previous video, we have done Pythagoras theorem. So, continuing with the same, we are going to do some more questions based upon Pythagoras theorem. Before starting today's video, let me share its learning outcomes. After watching today's videos, you will be able to apply Pythagoras theorem on various mathematical problems. So, till now we have done up to question number 7. Now, moving on to our question number 8. Question number 8 is, in figure 6.54, O is a point in the interior of triangle ABC. OD perpendicular to BC, OE perpendicular to AC and OF perpendicular to AB. Show that our first part is OA square plus OB square plus OC square minus OD square minus OE square minus OF square is equal to AF square plus BD square plus CE square. And the second part, AF square plus BD square plus CE square is equal to AE square plus CD square plus BF square. So, let's have a look at the figure. In this figure, we are going to join OA, OB and OC. OA, OB and OC. This way we have got 6 right angle triangles. AOF, AOE, BOF, BOD, COD and COE. And we know that in a right angle triangle, the side opposite to a right angle is a hypotenuse. So, here OA, OB and OC are the hypotenuse of various right angle triangles. First of all, we will take triangle AOF. So, in triangle AOF, angle F is a right angle. So, OA will be the hypotenuse. Using Pythagoras theorem, we get AO square is equal to OF square plus AF square. Rearranging its term, we can write it as AO square minus OF square is equal to AF square. After that, taking triangle BOD, here BO is our hypotenuse. Using Pythagoras theorem, we get BO square is equal to OD square plus BD square. Again, rearranging the terms, we can write it as BO square minus OD square is equal to BD square. Last triangle we are going to take is COE. Here OC is our hypotenuse. So, again using Pythagoras theorem, CO square is equal to OE square plus EC square. So, here we get CO square minus OE square is equal to EC square after rearranging the terms. Now, adding equation number 1, 2 and 3, we will get AO square minus OF square plus BO square minus OD square plus CO square minus OE square is equal to AF square plus BD square plus EC square. Rearranging the terms on the left hand side to get our answer, we can write it as OA square plus OB square plus OC square minus OD square minus OE square minus OF square is equal to AF square plus BD square plus CE square. In second part, our AF square plus BD square plus CE square, this side we require, but other than that the terms needed are AE square, CD square and BF square. Let's see, AE is the part of which triangle? This is AE is a part of triangle AOE. So, in triangle AOE, AE square will be equal to OA square minus OE square. Why? क्योंकि बेटा जी ये है हमारा राइट एंगल. तो राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल के ऑपोजिट होता है हाइपोटेन्यूज. तो ये बनता OA स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर इज इक्वल टू So, in triangle AOE, this is a right angle. So, OA, it is hypotenuse. We can write OA square
is equal to OE square plus AE square. From here AE square will be OA square minus OE square. एंड सिमिलरली अगर हम CD स्क्वायर की वैल्यू निकालें यहाँ से तो CD स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा जी OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर. और नेक्स्ट हम BF है तो BF स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा OB स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर. अब हम इसके अकॉर्डिंगली अपनी यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड की टर्म्स को रीअरेंज कर रहे हैं. रीअरेंजिंग द टर्म्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वी विल राइट इट एज, देखिए यहाँ पे सबसे पहले OA स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर को हमने इकट्ठा कर लिया, वी हैव रीअरेंज्ड. देन OB स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर को और OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर को, और राइट हैंड साइड हमारी एज इट इज रह गई. तो OE स्क्वायर माइनस OA स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर इज AE स्क्वायर. तो फर्स्ट टर्म AE स्क्वायर हो गई, सेकेंड टर्म CD स्क्वायर होगी और थर्ड टर्म BF स्क्वायर हो गई. In this way we have got our second part. So our question number 9 is, a ladder 10 meter long reaches a window 8 meter above the ground. Find the distance of the foot of the ladder from base of the wall. So let's draw figure. So in this figure ladder is our AB. It is given to be 10 meter in length and it is reaching a window, which is window, this is the window which is 8 meter above the ground, and we have to find the distance OB. Let OA be the wall and AB be the ladder. Using Pythagoras theorem we will get AB square is equal to OB square plus OA square. Substituting the values, 10 square is equal to OB square plus 8 square. 10 square is 100, OB square is 64. So OB square 100 minus 64 that is 36. So OB square 36 आ गया, तो OB हमारे पास आ जाएगा 6 meters. तो distance of the foot of the ladder from the base of the wall is 6 meters. Now question number 10. A guy wire attached to a vertical pole of height 18 meter is 24 meter long and has a stake attached to the other end. How far from the base of the pole should the stake be driven so that the wire will be taut? Let's have a look. एक वायर है, वो एक वर्टिकल पोल, दिस पोल, इसके साथ उसको अटैच किया है यहाँ स्टेक के साथ, यहाँ पे पॉइंट ए पे. वर्टिकल पोल की जो हाइट है वो है 18 मीटर दिस साइड और वायर की लेंथ है 24 मीटर. वी हैव टू टेल कि बेस ऑफ द पोल से कितने दूर पॉइंट पे इससे हमें, कितने डिस्टेंस पे इसे हमें अटैच करना है. तो लेट ओ बी द पोल एंड ए बी विद द वायर. तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या बन जाएगा बेटा जी, ए बी स्क्वायर is equal to OB square plus OA square. Substituting the values, 24 square is equal to 18 square plus OA square. So 576 minus 324 आ गया हमारे पास, ठीक है जी. और 576 में से 324 माइनस किए 252. On simplifying we get OA as 6√7 meters. Therefore distance from the base of the pole कितना आ गया हमारे पास, 6√7 meters. Question number 11. An aeroplane leaves an airport and flies due north at a speed of 1000 km per hour. At the same time, another aeroplane leaves the same airport and flies due west at a speed of 1200 km per hour. How far apart will be the two planes after 1.5 hours? बेटा क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पे पहले हम डायरेक्शंस ड्रॉ करते हैं. यहाँ से अगर एक जो है एरोप्लेन, मान ली ये हमारा ओ पॉइंट है जहाँ पे एयरपोर्ट है ना, एक जो प्लेन है हमारा वो गया ड्यू नॉर्थ, इस साइड नॉर्थ वाली साइड, कितनी स्पीड में 1000 km per hour पे,
और दूसरा एरोप्लेन हमारा गया वेस्ट की तरफ एट अ स्पीड ऑफ 1200 किलोमीटर पर आवर। तो हमें एक की पोजीशन ए हो गई, एक की पोजीशन बी हो गई। हमें बताना है 1.5 आवर के बाद व्हाट इज द डिस्टेंस ए बी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ओ ए डिस्टेंस और ओ बी डिस्टेंस कैलकुलेट कैसे करेंगे वो देखिए स्पीड अगर 1000 किलोमीटर पर आ रहा है तो हमें 1.5 आवर का डिस्टेंस निकालना है। हम 1000 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये बन जाता 1000 इंटू 3/2, दैट मीन्स 1500 किलोमीटर। ऐसे सेकंड प्लेन की स्पीड कितनी थी 1200 किलोमीटर पर, सेकंड प्लेन की स्पीड कितनी थी 1200 किलोमीटर पर आवर। इसको भी 1.5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 1800 किलोमीटर आ गया। नाउ इट इज राइट एंगल ट्रायंगल in which we know what is the legs of the in which we know the distance OA and OB. So by applying Pythagoras we can find AB square. Okay, so it will be AB square is equal to OA square plus OB square. Substituting the values 1500 square plus 1800 square, on simplifying we will get 549,000, that is 300√61 kilometer. So distance between the two planes will be 300√61 kilometer after 1.5 hour. Chaliye, moving on to question number 12. Two poles of height 6 meter and 11 meters stand on a plain ground. If the distance between the feet of the poles is 12 meter, find the distance between their tops. अब ये फिगर जरा ध्यान से देखिए, दोनों वर्टिकल हाइट मीन्स ये दोनों तो राइट एंगल हो गया 90 डिग्री का एंगल। एक की हाइट 6 है, एक की 11 है। हमने ए से बी डी के पैरेलल लाइन ड्रॉ की तो ये डिस्टेंस 6 है तो इतना डिस्टेंस भी 6 हुआ और बाकी डिस्टेंस बच गया फिर 5 मीटर। ये 12 है तो ये भी 12 हुआ। हमें डिस्टेंस बिटवीन द टॉप्स मतलब ए सी फाइंड आउट करना है। तो लेट सी डी एंड ए बी बी द पोल्स ऑफ हाइट 11 मीटर एंड 6 मीटर रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे देखिए सी पी जब मैंने अभी एक्सप्लेन किया तो कितना बन गया, तो अब हमारे पास हमने कौन सी ट्रायंगल लेनी है एपीसी। एपीसी ट्रायंगल में वी विल अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। तो AP square plus PC square is equal to AC square. Now substituting the values 12 square plus 5 square is equal to AC square. So AC square आ गया 144 plus 25 which is 169 and 169 is square of 13, hence AC आ गया 13 meter. So therefore distance between the tops is equal to 13 meter. Question is B and E are points on the sides CA and CB respectively of a triangle ABC, right angled at C. Prove that AE square plus BD square is equal to AB square plus DE square. Let's have a look at the figure. This is a triangle ABC. Okay, right angled at C. D is the point on side CA and E is the point on the side CB. तो बेटा इसमें ऑलरेडी AE और BD को ज्वाइन किया हुआ है, एक हम इसमें ज्वाइनिंग कर लेंगे DE की। चलिए सबसे पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल ACE लें। अगर ACE ये ट्रायंगल देखिए तो AE स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। ओके, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। अब हमारे पास AE स्क्वायर आ गया, नेक्स्ट वी नीड BD स्क्वायर। तो अब देखिए BD किस ट्रायंगल का पार्ट है, BD किस ट्रायंगल का पार्ट है हमारे पास, इट इज अ पार्ट ऑफ द ट्रायंगल BCD। तो इस ट्रायंगल में हम पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा बेटा जी, इन ट्रायंगल BCD वी विल गेट BC square plus CD square is equal to BD square. This is our equation number 2. अब हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। What will we get? AC square plus CE square
is equal to BC square plus CD square is equal to AE square plus BD square. Now rearranging the terms, we will write it as AC square plus BC square or CE square plus CD square, which is equal to AE square plus BD square. This is our equation number 3. Now next we will take triangle CDE जो हमने यहाँ पे ज्वाइनिंग की है, CDE ट्रायंगल में तो पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या बनेगा, CD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर इज इक्वल टू DE स्क्वायर. और फिर हम लेंगे ट्रायंगल ABC बड़े वाली ट्रायंगल है ना, इसमें क्या बन जाएगा, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखेंगे, देखो बेटा AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर की वैल्यू फ्रॉम 5 आ गई हमारे पास AB स्क्वायर, और CE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ गई फ्रॉम 4 DE स्क्वायर. तो हम 4 और 5 का यूज करेंगे इन इक्वेशन नंबर 3. तो क्या बन जाएगा, उनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पे AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर. सो दिस वाज आवर रिक्वायर्ड प्रूफ. Now, so question number 14 is the perpendicular from A on side BC of a triangle ABC intersects BC at D such that DB is equal to 3 times CD. Prove that 2AB square is equal to 2AC square plus BC square. Let's have a look at the figure. Here it is given that in this triangle AD is perpendicular. एक triangle ABC है जिसमें हमने AD perpendicular ड्रॉ किया जो BC को D पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है. तो और क्या गिवन है कि जो BD डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ये CD डिस्टेंस का 3 टाइम्स है. ओके, जो BD है वो CD का 3 टाइम्स है. बेटा देखो यहाँ पे BC ये टोटल लेंथ है BC, we can write it as DC plus BD. दोनों का सम करने पे BC आया ना. अब इनमें से जो हमारे पास BD है, जो DB जो भी हम लिखें इसको हम 3DC लिख सकते हैं. सो रिप्लेसिंग दिस वैल्यू DC प्लस 3DC, हाँ जी वो क्या आ जाएगा, BC आ गया 4 टाइम्स DC. और जब हम ये कहेंगे कि DC की वैल्यू 1/4 BC आ गई हमारे पास. ओके, और सेकेंडली अब हमें निकालना है BD. अब देखो ये है इतना डिस्टेंस BD है, अगर मैं टोटल डिस्टेंस BC में से इतना डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट कर दें तो BD बचेगा. फिर से देखिए टोटल डिस्टेंस BC में से CD डिस्टेंस माइनस करने पे BD इज लेफ्ट. अभी हमने DC की वैल्यू फाइंड किया 1/4 BC, वो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे. तो BD आ गया BC माइनस 1/4 BC. आफ्टर टेकिंग LCM वी विल गेट इट एज 3/4 BC, क्योंकि यहाँ पे 4 आपका LCM आ जाएगा. तो इट विल बी 4 BC माइनस BC, दैट मीन्स 3/4 BC. अब हमारे पास 2 राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं. हमने फर्स्ट ट्राइंगल ले ली ACD. ACD ट्राइंगल में हम क्या लिख सकते हैं, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर. यहाँ से हम AD स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, इट विल बी AC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर. सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1. अब हमारे पास दूसरी राइट एंगल ट्रायंगल है ABD. अब हम लेंगे ट्रायंगल ABD. तो ABD ट्रायंगल में हमारे पास क्या आएगा, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर. बटा यहाँ से भी हम AD स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, इट विल बी AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर. 1 और 2 दोनों में हमने AD स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट की है. हम फ्रॉम 1 और 2 इनके हम राइट हैंड साइड को इक्वेट कर देंगे. व्हाट विल वी गेट, AC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर. देखिए जो हमने प्रूफ करना, देखो उसमें हमें क्या क्या रिक्वायर्ड है. AB स्क्वायर रिक्वायर्ड है तो AB स्क्वायर हमारे पास है. AC स्क्वायर रिक्वायर्ड है तो AC स्क्वायर हमारे पास है. लेकिन DC और BD स्क्वायर नहीं रिक्वायर्ड. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, DC की वैल्यू 1/4 BC पुट करेंगे और BD की वैल्यू 3/4 BC पुट करेंगे. ना सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज,
we get AC square minus BC over 4 whole square is equal to AB square minus 3BC by 4 square. तो सिंप्लीफाई करके क्या आ जाएगा बेटा जी ये, इट विल बी AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर बाय 16 और AB स्क्वायर माइनस 9BC स्क्वायर बाय 16. नाउ रीअरेंजिंग द टर्म्स एलसीएम लेके, तो ये आ गया 16 AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर is equal to 16 AB square minus 9 BC square. So we can write it as 16 AB square is equal to 8 BC square plus 16 AC square. देखो यहाँ पे माइनस का 9 यहाँ जाके प्लस का हो जाएगा ना 9, तो ये 8 BC square हो गया. अब देखो ये सारे 8 के टेबल में आता है, डिवाइडिंग बाय 8 we will get it as 2 AB square is equal to BC square plus 2 times AC square. Now moving on to question number 15. Our 15th question is, in an equilateral triangle ABC, D is a point on BC such that BD is equal to 1 by 3 BC. Prove that 9 AD square is equal to 7 AB square. बट ये हमारी फिगर है, इसमें D पॉइंट हमें ऑलरेडी गिवन था और E हमने AE हमने एल्टीट्यूड ड्रॉ किया. एल्टीट्यूड आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का मीडियन भी होता है. तो मान लीजिए इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो साइड है, हर एक साइड को हमने A मान लिया और AE एल्टीट्यूड है ट्रायंगल का, और एल्टीट्यूड मीडियन होता है तो B, अगर टोटल साइड आपकी A है, E मिड पॉइंट है, तो BE इज इक्वल टू EC A बाय 2 आ गया. अब BD 1 by 3 BC गिवन था ऑलरेडी, देखिए स्टेटमेंट में, और हमने इसकी हर एक साइड को A से लेट किया तो इट विल बी A by 3. तो BD की वैल्यू आ गई A by 3. नाउ वी हैव टू फाइंड DE. देखना ज़रा ध्यान से, ये है इतना DE. अगर मैं टोटल लेंथ BE में से हम BD माइनस कर दें इतना, तो DE बच जाएगा. तो हमने लिख दिया BE माइनस BD. अब BE कितना यहाँ से A बाय 2 और BD कितना A बाय 3. तो एलसीएम लेने पे DE आ गया A अपॉन 6. सो DE हमारे पास क्या आ गया, A बाय 6. अब हमने लेनी है राइट एंगल ट्रायंगल AEC. देखो AEC, दिस ट्रायंगल, we can write it as AC square is equal to AE square plus EC square. Is it clear? AC square को हमने क्या लिख दिया, AE square plus CE square. AC क्या है, साइड ऑफ द ट्रायंगल. जो साइड ऑफ द ट्रायंगल है उसको हमने A माना है तो ये A स्क्वायर आ गया. CE की वैल्यू यहाँ से देखो A बाय 2 है तो ये A बाय 2 का स्क्वायर. तो यहाँ से AE स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे सिंप्लीफाई करके. We will get AE square 3A square by 4 और AE आ गया 3√3A अपॉन 2. अब हम नेक्स्ट ट्रायंगल लेंगे AED. बेटा जी AED ट्रायंगल जो मैं रेड पेन से हाईलाइट कर रही हूँ, तो ये क्या बनेगा, AD स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर. अब AE की वैल्यू हमारे पास है और DE की वैल्यू हमारे पास है. AE है √3A बाय 2 और DE है A बाय 6. सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज, तो AD स्क्वायर कितना आ गया, √3A अपॉन 2 होल स्क्वायर प्लस A बाय 6 का स्क्वायर. √3 का स्क्वायर 3, ये बन गया 3A स्क्वायर बाय 4 और A स्क्वायर बाय 36. 36 आपका एलसीएम आ जाएगा तो AD स्क्वायर आ गया 27A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर. दैट मीन्स 28A स्क्वायर बाय 36. इसकी कटिंग हो जाएगी 4 के टेबल पे. अब 9 इस साइड चला जाएगा, वी विल गेट AD स्क्वायर आ गया 7A स्क्वायर बाय 9 और फिर आ गया 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7A स्क्वायर. अब 9AD स्क्वायर तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे 7A स्क्वायर ही 7AB स्क्वायर है. तो AB क्या है, साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल, और हमने साइड को क्या माना था, A. तो हम A की जगह क्या लिख देंगे यहाँ पे, AB स्क्वायर. तो आवर आंसर इज 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7AB square. I hope it is clear. Moving to question number 16.
In an equilateral triangle, prove that 3 times the square of one side is equal to 4 times the square of one of its altitudes. क्वेश्चन क्या है बेटा, किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल में AE अगर एल्टीट्यूड है तो हमें क्या प्रूव करना, हमें प्रूव क्या करना है, 3 टाइम्स साइड स्क्वायर, कोई भी साइड हो सकती है AB AC BC इज इक्वल टू 4 टाइम्स एल्टीट्यूड स्क्वायर, मतलब AE स्क्वायर. लेट्स स्टार्ट. लेट्स अज्यूम दैट इक्विलेटरल ट्रायंगल की हर एक साइड A है, A और A. AE एल्टीट्यूड है तो हमने पहले कितनी बार यूज किया ये रिजल्ट कि किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में एल्टीट्यूड मीडियन भी होता है. तो क्या आ जाएगा, BE इज इक्वल टू CE, ये हो गया A/2. इसने इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. ना टेक एनी राइट एंगल ट्रायंगल, 2 राइट एंगल ट्रायंगल्स है, टेक एनी. हियर वी हैव टेकन AEC. What will we get? AC square is equal to AE square plus CE square. तो यहाँ पे हमारे पास AE स्क्वायर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. AC क्या है, साइड ऑफ ट्रायंगल, तो उसको हमने A लिया है. तो A स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस A/2 होल स्क्वायर. सिंप्लीफाइंग, A स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस A स्क्वायर बाय 4. तो AE स्क्वायर बेटा क्या आ गया, इसको शिफ्ट करके इस साइड, A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाय 4. Now taking 4 as LCM, we get AE square is equal to 3A square by 4. और 4 को शिफ्ट कर दीजिए, 4 टाइम्स AE square is equal to 3 टाइम्स A square. तो हम A square is the side, तो किसी भी साइड से रिप्लेस कर दो. हमने लिख दिया 4 टाइम्स AB square. तो प्रूफ क्या हो गया, 3 टाइम्स स्क्वायर ऑफ एनी साइड इज इक्वल टू 4 टाइम्स स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड्स. Tick the correct answer. Justify. In triangle ABC, AB is equal to 6 root 3 cm, AC 12 cm, BC 6 cm. Then angle B is. बेटा जिसको करने के लिए हम पहले सारी साइड्स का स्क्वायर करेंगे, ठीक है. तो AB दिया है हमें 6 रूट 3, AC 12 और BC 6. तो AB स्क्वायर हो गया 6 रूट 3 का स्क्वायर किया 108, AC स्क्वायर हो गया 144 और BC स्क्वायर हो गया 36. अगर हम AB स्क्वायर और BC स्क्वायर को ऐड करें, इट विल गिव यू 144. AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर विच इज यही आएगा ना बेटा जी, देखो एक बार करके दिखा दो. अगर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू 108 प्लस 36 विच इज 144, और 144 क्या दिया हुआ है हमें, AC स्क्वायर. सो इट इज सेटिस्फाइंग पाइथागोरस थ्योरम. सो बाय कन्वर्स ऑफ, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गई बाय द कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है. अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो लॉन्गेस्ट साइड के ऑपोजिट वाला एंगल क्या था, राइट एंगल. तो लॉन्गेस्ट साइड है 12, उसके ऑपोजिट एंगल B है, तो एंगल B आ गया 90 डिग्री. सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन C. सो विद दिस वी हैव फिनिश्ड आवर चैप्टर ट्रायंगल्स. आई होप इट इज क्लियर टू यू. थैंक यू फॉर वॉचिंग बेटा.